بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جس آفس میں جاب کرتا تھا وہ میرے گھر سے بہت دور تھا۔ میرے پاس سواری نہیں تھی، اس لیے کبھی بس پر تو کبھی رکشے پر جانا پڑتا تھا۔ بس بہت ہلکی سواری ہے، بہت سست سواری کہا جائے تو یہ بہتر ہے۔ اس لیے میں اکثر آفس سے لیٹ ہو جاتا تھا اور باس کی ڈانٹ کھانی پڑتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک دن باس نے دھمکی بھی دے دی کہ اگر آئندہ وقت پر نہ آئے تو تمہاری سیلری بھی کٹ جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نوکری سے تمہیں ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ میں نوکری سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا۔ آج کل لوگ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ان میں سرکاری نوکری تو ایک طرف، پرائیویٹ نوکری ملنا بھی بہت ہی مشکل ہے۔ میں نے بے شمار ایسے نوجوان دیکھے تھے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور ہاتھوں میں ڈگریاں لیے دفتروں کے دھکے کھانے پر مجبور تھے، لیکن نوکریاں نہیں مل رہی تھیں۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں نئی موٹر سائیکل خرید لیتا، چنانچہ میں نے یہ حل نکالا کہ ایک رکشہ لگوا لیا۔ چند دن تو رکشے والا وقت پر مجھے لینے آ جاتا اور وقت پر آفس چھوڑ دیتا، لیکن بعد میں وہ دیر سے آنے لگا۔ میں رکشے والے سے وجہ پوچھتا تو وہ مختلف بہانے بنا دیتا کہ گیس ختم ہو گئی تھی، ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ آخر کار تنگ آ کر میں نے اس کا حساب برابر کر دیا اور اسے مکمل چھٹی دے دی۔ پھر میں نے ٹیکسی پر جانا شروع کر دیا۔ اتفاق کی ہی بات تھی کہ جب میں آفس جانے کے لیے گھر سے نکل کر سڑک پر پہنچتا تو مجھے وہی ٹیکسی والا مل جاتا جس میں نے پہلی بار سفر کیا تھا۔ اس سے میری اچھی خاصی سلام دعا ہو گئی تھی۔ اس کا نام شوکت تھا۔ وہ نوجوان اور میرا ہم عمر ہی تھا، باتونی بھی بہت تھا، لیکن میں نے کبھی اس کے بولنے پر برا نہیں مانا تھا۔ باتیں کرنے سے وقت بھی کٹ جاتا تھا۔ اس روز اتوار تھا، یعنی آفس سے چھٹی تھی۔ میری بیوی تنزیلہ ضد کر رہی تھی کہ میں اسے پارک میں گھمانے پھرانے لے چلوں۔ ہم رکشے پر جاتے تو اچھا خاصا کرایہ لگ جانا تھا، اس لیے میرے دل میں خیال آیا کہ میں شوکت کو بلا لیتا ہوں، وہی ہمیں پارک چھوڑائے گا اور لینے بھی آ جائے گا۔ چنانچہ میں نے اسے فون کیا۔ دوسری ہی بیل پر اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ السلام علیکم فرحان بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جواباً میں نے بھی اس پر سلامتی بھیجی۔ کہاں ہو یار؟ میں تو نہر والے پل پر ہوں، شوکت نے بتایا۔ خیریت تو ہے نا بھائی؟ یار تمہاری بھابھی پارک جانے کی ضد کر رہی ہیں، میں نے وجہ بتا دی۔ اور تم تو جانتے ہو کہ رکشے والے بہت زیادہ کرایہ مانگ لیتے ہیں۔ اگر تم فری ہو تو آ جاؤ اور ہمیں پارک بھی چھوڑ دو، میں تمہیں کرایہ دے دوں گا۔ ٹھیک ہے فرحان بھائی، میں 20 منٹ میں آ رہا ہوں، شوکت نے کہا تو میں نے شکریہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ میں نے تنزیلہ کو بتایا تو وہ خوش ہو گئی اور تیار ہونے چلی گئی۔ 20 منٹ کے بعد شوکت آ گیا اور ہم میاں بیوی اس کے ساتھ پارک کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر تنزیلہ بے حد خوش تھی۔ جب ہم پارک میں پہنچے تو شوکت نے کہا، فرحان بھائی میں یہیں انتظار کرتا ہوں، تم لوگ سیر سپاٹے کر کے آرام سے آ جانا، دیر نہیں ہو جائے گی؟ میں نے اسے بولا۔ ارے نہیں بھائی، اس نے نفی میں سر ہلایا، میں نے کون سا کہیں جانا ہے، اب گھر ہی تو جانا ہے۔ میں نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ 1.5-2 گھنٹے کے بعد ہم پارک سے باہر آ گئے۔ شوکت منتظر تھا، اس نے ہمیں گھر چھوڑ دیا۔ جب میں نے اسے آنے اور جانے کا کرایہ دیا تو اس نے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگا، بھابھی آج پہلی بار تو میری ٹیکسی میں بیٹھی ہیں، اس لیے میں آج کرایہ نہیں لوں گا۔ شوکت کے جانے کے بعد ہم اسی کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ مجھے فخر تھا کہ مجھے ایک اچھا دوست مل گیا ہے۔ اچھے دوست بھی خوش قسمتی والوں کو ہی ملتے ہیں۔ تنزیلہ سے میری شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی، لیکن ہم ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ تنزیلہ میرے ابو کے دور کی رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ اس سے میری شادی میرے والدین کی مرضی سے ہوئی تھی۔ تنزیلہ میٹرک پاس تھی، ہم گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ جب میری جاب لگی تو میں گاؤں سے نکل کر شہر آ گیا۔
मैं दिन को नौकरी पर होता था और तंजीला घर पर होती थी। हमने अब कहीं भी जाना होता था तो मैं शौकत को फ़ोन कर देता था। वो आकर हमें ना सिर्फ ले जाता बल्कि घर भी छोड़ जाता था और किराया भी मुनासिब ही लेता था। मेरी उससे दोस्ती गहरी होती जा रही थी। शौकत गैर शादीशुदा था। उसका बाप तो नहीं था, सिर्फ बूढ़ी माँ थी जिसके साथ वो रहता था। उसकी टैक्सी अपनी थी और वो रोज़ाना अच्छा खासा कमा लेता था। मैंने एक बार उससे शादी के बारे में पूछा तो उसने हंसकर कहा, अरे अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है, शादी के लिए तो यार सारी ज़िंदगी पड़ी है, जब करनी होंगी तो कर लूँगा। एक बार मैंने तंजीला के कहने पर उसकी दावत कर दी। पहले तो वो बहुत हिचकिचाया, फिर वो हमारे घर आ गया। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया था, खूब बातें की, चाय भी पी। फिर जब वो जाने लगा तो उसने तंजीला के पकाए खानों की तारीफ़ करते हुए कहा, भाभी यकीन करें मैंने आज से पहले कभी इतना मज़ेदार खाना नहीं खाया। कसम से खाना खाकर बहुत मज़ा आया है। आपके हाथों में बहुत जायका है। ये ले मेरी तरफ से इनाम। इतना कहने के बाद उसने 1000 का नोट निकाल कर तंजीला के हाथ पर रख दिया। तंजीला हिचकिचाई तो मैंने कहा, यार इसकी क्या ज़रूरत है, तकल्लुफ़ मत करो। शौकत ने मुझे टोक दिया था और कहा, यार मैं आपको नहीं अपनी भाभी को दे रहा हूँ, इसलिए आप ना ही बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी बात सुनकर मैं हंस दिया। फिर मेरे कहने पर तंजीला ने नोट रख लिया था। अब तो शौकत ने हमारे घर भी आना जाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो उस वक्त आता जब मैं घर पर ही होता था। मेरी गैर मौजूदगी में वो कभी नहीं आता था। वो बहुत अच्छा और खुददार इंसान था, इसलिए मुझे उस पर एतमाद था और वो मेरे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा, ये भी मैं जानता था। एक रोज़ उसने हम मियाँ बीवी की अपने घर में दावत रख दी थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बीवी तो है ही नहीं जो हमें खाना बनाकर खिलाएगी। शौकत हंसा था और कहने लगा, मेरी माँ बहुत अच्छे खाने पकाती है, आप खाएंगे तो याद रखेंगे। हमने उसकी दावत कबूल कर ली और उसके घर चले गए। उसकी माँ से मिलकर हमें खुशी हुई थी। वाकई ही उनके हाथ में बहुत जायका था। उन्होंने मज़ेदार खाना बनाया था। शौकत की माँ ने एक बार फिर तंजीला से कहा, बेटी तुम ही शौकत को समझाओ, अब शादी कर ले। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, कब मर जाऊँ कोई पता नहीं, लेकिन ये किसी की सुनता ही नहीं। तंजीला ने कहा, फरहान ने शौकत को बहुत समझाया है, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, फरहान दोबारा उससे बात करेंगे। एक रोज़ मैंने फिर शौकत से इसकी शादी का जिक्र छेड़ दिया था, तो उसने कहा, मैं शादी उस लड़की से करूँगा जिसमें भाभी जैसी खूबियाँ हों। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की है तो बताएं, मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने कहा, ठीक है, हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिल जाए। शौकत राज़ी हो गया और हमने लड़की की तलाश भी शुरू कर दी थी। मैंने मैरिज ब्यूरो वाले से रब्ता किया। उन्होंने कई खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें दिखाईं और खूबियाँ भी बताईं, लेकिन शौकत को कोई लड़की पसंद नहीं आई। मुझे हैरत हुई कि इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरें देखने के बावजूद उसे कोई पसंद नहीं आई थी। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तुम्हारी पसंद की कोई लड़की मिलना बहुत मुश्किल है, मैंने कहा, और मेरी मानो तो इन लड़कियों में से कोई पसंद कर लो। लेकिन शौकत ने इनकार कर दिया था। वक्त गुजरता रहा और हम उसके लिए लड़की की तलाश जारी रखे हुए थे। एक रोज़ मैं ईशा की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से निकल रहा था कि मुझे मुबश्शिर साहब ने आवाज़ दी, फरहान मियाँ मेरी बात तो सुनो। मैं रुक कर उनकी बात सुनने लगा। वो हमारे मोहल्ले में ही रहते थे, बुज़ुर्ग थे और परहेज़गार थे। फरहान मियाँ, ये जो टैक्सी वाला लड़का तुम्हारे घर आता है वो तुम्हारा क्या लगता है? मुझे हैरत हुई थी कि उन्होंने क्यों पूछा है। ताहम मैंने जवाबन कहा, अरे चाचा जी, वो मेरा दोस्त है, लेकिन मैं उसे दोस्त कम सगा भाई समझता हूँ।
मुबश्शिर साहब ने सर हिलाने के बाद संजीदा अंदाज में कहा, देखो मियाँ, मुझे कहने का तो हक नहीं है, लेकिन कह रहा हूँ कि रिश्ते सगे ही एतमाद के होते हैं। मुझे तुम्हारे ये दोस्त मशकूक लगता है, इससे बचकर रहना। मैंने उनकी बात हंसकर टाल दी और कहा, चाचा जी आप बेफिक्र रहें, आप उसे जैसा समझ रहे हैं वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुबश्शिर साहब ने मज़ीद कोई बात ना की और सर हिलाकर चल दिए थे और मैं घर चला आया। अगले रोज़ ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं लेट हो सकता था। मैंने पहले शौकत को कॉल की कि अगर वक्त मिल जाए तो मुझे रात 8 बजे ऑफिस से ले लेना। उसने देर होने की वजह पूछी तो मैंने उसे बताया कि ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज लेट हो जाऊंगा। उसने वादा किया कि वो 8 बजे पहुंच जाएगा। फिर मैंने तंजीला को भी फ़ोन करके बता दिया। वो मुझसे बात कर रही थी कि अचानक मुझे फ़ोन बजने की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंका और तंजीला से पूछा, ये फ़ोन किसका बज रहा है? पहले तो वो गड़बड़ा गई, फिर कहा, अरे टीवी चल रहा है इसमें फ़ोन बज रहा है। ओके। मैंने ये कहकर फ़ोन रख दिया और काम में मसरूफ़ हो गया। ठीक 8 बजे शौकत मुझे लेने आ गया और मैं काम से फारिग होकर उसके साथ ही घर की तरफ रवाना हो गया। काम की वजह से मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। घर पहुंचकर मैंने शौकत को भी खाने की दावत दी, लेकिन वो ये कहकर चला गया कि उसे ज़रूरी काम से कहीं जाना है, इसलिए वो फिर कभी खा लेगा। उसके जाने के बाद मैंने खाना खाया, ईशा की नमाज पढ़ी, थोड़ी देर टीवी देखा और फिर सोने के लिए बेडरूम में चला गया, जबकि तंजीला ड्राइंग रूम में बैठी टीवी देखती रही। इसका पसंदीदा ड्रामा लगा हुआ था। वो ड्रामे बड़े शौक से देखती थी। न जाने रात का कौन सा पहर था कि मेरी आंख खुल गई। मैंने करवट बदलते हुए तंजीला की तरफ देखा तो वो बिस्तर पर नहीं थी। शायद वो वॉशरूम में होगी, मैंने सोचा और सोने की कोशिश करने लगा। जब काफ़ी देर गुजर गई और तंजीला ना आई तो मुझे हैरानी हुई। वो वॉशरूम में भी कभी इतनी देर नहीं लगाती थी जितनी आज लगाई थी। उसका सेट फ़ोन भी साइड टेबल पर नहीं था। वो रात को सोने से पहले अपना सेल फोन साइड टेबल पर ही रखती थी। मैं बिस्तर से निकलकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो अंदर मौजूद नहीं थी। मैंने आवाज़ दी, तंजीला, तंजीला कहाँ हो तुम? 2-3 बार आवाज़ें देने पर वो फ़ौरन ही कमरे में आ गई। उसकी रंगत उड़ी हुई थी और वो हवास भागता दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा, रात के इस पहर कहाँ थी? खैरियत तो है ना? तुम्हारे चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही हैं। उसने पहले अपने हवास पर काबू पाया, फिर वो अटकते हुए बोली, वो मैं बाहर गई थी। दरअसल मुझे खटकने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि शायद कोई चोर घुस आया है, बस यही देखने चली गई थी। मुझे हैरत हुई और गुस्सा भी आया। बेवकूफ़, तुम्हें अकेले जाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे जगा दिया होता। अगर कोई चोर होता वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था। तंजीला ने कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आइंदा ऐसा हुआ तो मैं आपको जगा दूंगी। मेरी नज़र उसके हाथों पर पड़ी तो मैंने पूछा, तुम्हारा सेल फोन कहाँ है? मेरी बात सुनकर वो गड़बड़ा गई, फिर कहने लगी, वो शायद किचन में रखा है। मैं पानी पीने गई थी ना, मैं ले आती हूँ। मैंने उसकी बेपरवाही पर मुंह बनाया। कुछ देर के बाद वो अपना सेल फोन लेकर आ गई और हम सो गए। सुबह मैं उठा तो मेरे सर में शदीद दर्द था, इसलिए मैंने बॉस से बात करके छुट्टी कर ली। मैंने तंजीला को देखा कि वो बेचैन और परेशान सी दिखाई दे रही थी। मैंने उससे पूछा तो वो टाल गई। मैंने शौकत को भी फ़ोन करके कह दिया कि आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, इसलिए वो मुझे लेने ना आए। मेरी तबीयत की खराबी का सुनकर वो फ़ौरन ही आ गया था। भाई, अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो डॉक्टर के पास ले चलूं? शौकत ने पूछा। नहीं नहीं, बस सर में दर्द है, गोली खा ली है, ठीक हो जाऊंगा, मैंने उसे मना करते हुए कहा।
शौकत कुछ देर बैठने के बाद चला गया तो मैं बिस्तर पर आराम करने लगा और तंजीला घर के काम काज में मसरूफ़ हो गई। दोपहर तक मेरी तबीयत ठीक हो चुकी थी, इसलिए मैं नहाने के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद चला गया। मस्जिद में मुबश्शिर साहब भी मौजूद थे। जब मैं नमाज़ पढ़कर घर आने लगा तो वो भी मेरे साथ ही चल दिए। रास्ते में मुबश्शिर साहब ने पूछा, मियाँ फरहान आज ऑफिस नहीं गए? बस तबीयत ख़राब थी इसलिए छुट्टी कर ली, मैंने जवाबन कहा। मैं कभी कभी उनको अंकल भी कहता था। उन्होंने सर हिलाया। हम साथ साथ चल रहे थे। कुछ देर के बाद वो दोबारा गोया हुए, मियाँ मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। मेरी बात का बुरा ना मनाना, वो आहिस्ता से बोले। जो दोस्त आस्तीन के सांप होते हैं उनसे हमेशा बचना चाहिए। मैं तुम्हें फिर यही ताकीद करूँगा, तुम्हारा दोस्त शौकत मुझे अच्छा नहीं लगता, उसका किरदार अच्छा नहीं है। मैंने हंसकर कहा, मुबश्शिर साहब आप ख्वामख्वाह मेरे दोस्त के बारे में बदगुमान हो रहे हैं। वो बहुत अच्छा और नेक इंसान है। मुबश्शिर साहब ने तंज़िया लहजे में कहा, अच्छे दोस्त कभी दोस्त की गैर मौजूदगी में उसके घर नहीं आते। वो हमेशा उस वक्त आते हैं जब उनका दोस्त घर पर हो। उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। दिमाग में अजीब से ख्यालात आने लगे। मैंने हैरत भरे लहजे में दरियाफ़्त किया, आप क्या कहना चाहते हैं मुबश्शिर साहब? आपकी बात समझ में नहीं आ रही। हम चलते चलते रुक गए थे। मुबश्शिर साहब मुस्कुरा दिए और लम्हे भर के बाद कहने लगे, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है बेटा। मैं तुम्हें इशारा दिया है, यकीनन तुम समझ गए होगे। अच्छा मैं चलता हूँ। मुबश्शिर साहब तो चले गए, लेकिन मुझे सोचने पर मजबूर कर गए। उनकी कही गई हर एक बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि अच्छे दोस्त कभी किसी दोस्त की गैर मौजूदगी में उसके घर नहीं आते। इसका मतलब तो यही था कि शौकत मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आता था। ये सोच कर ही मेरे असाब तन गए और गुस्से की शिद्दत से कनपटियाँ सुलग उठीं। मैं जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ा। मुझे तंजीला से पूछना था कि क्या वाकई ही शौकत मेरी गैर मौजूदगी में घर आता है, लेकिन फिर मैंने ये इरादा तर्क कर दिया। गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है। हो सकता है मुबश्शिर साहब को कोई गलतफहमी हुई हो। बाज़ औक़ात जो जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं होता है। देखा हुआ और कानों सुना हुआ भी गलत साबित हो जाता है। मैं घर आ गया। मुझे सोच में डूबा देखकर तंजीला ने पूछा, फरहान क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं अब तंजीला की हरकत और सकनात का जायज़ा लेना चाहता था, लेकिन मैंने कई दिन तक नोट किया। मुझे तंजीला में कोई ऐसी बात मशकूक ना लगी जिससे मुबश्शिर साहब का खदशा दुरुस्त साबित होता। एक रोज़ ऑफिस में काम जल्दी ख़त्म हो गया। मैंने बॉस से छुट्टी मांगी तो उन्होंने दे दी। मैं उस रोज़ शौकत को फ़ोन ना किया और बस से घर रवाना हो गया। उस वक्त दिन के 3 बज रहे थे। जब मैं घर पहुंचा तो 4 बजने वाले थे। मेरे पास घर की चाबी थी। एक चाबी मेरे पास होती थी और दूसरी तंजीला के पास। मैं चाबी से ताला खोलकर घर में दाखिल हुआ तो अचानक मुझे बातों की आवाज़ें सुनाई दी। मैं ठुठक गया और गौर किया तो मेरे तन बदन में आग भड़क उठी। वो कोई और नहीं था और तंजीला के साथ बातें कर रहा था। उन दोनों के कहके भी गूंज रहे थे जिनसे मेरे दिमाग में मिर्चें भर रही थी। उस वक्त शौकत मेरे घर में क्या कर रहा था? मेरे दिमाग में मुबश्शिर साहब की बातें गूंजने लगीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि जिसे मैं बहुत अच्छा और नेक इंसान समझता था वो आस्तीन का सांप साबित हुआ था। वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी के साथ। इससे आगे मैं ना सोच सका। मैंने इधर उधर नज़रें दौड़ाईं तो मुझे एक तरफ कपड़े ढूंढने वाला डंडा मिल पड़ गया। मैंने वो डंडा उठाया और दबे कदमों
चलता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी बीवी अमानत में ख़यानत करेगी, मुझे धोखा देगी। इस ख़यानत की सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ कत्ल है। मैं जैसे जैसे ड्राइंग रूम के करीब हो रहा था, उनकी आवाज़ें वाज़ेह होती जा रही थीं। फिर मैंने अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर कुछ यूँ था। तंजीला एक सोफ़े पर तो शौकत दूसरे सोफ़े पर बैठा हुआ था। शौकत यूँ बैठा हुआ था जैसे वो अपने घर में बैठा हो। मुझे देखकर वो दोनों ही उठ खड़े हो गए। तंजीला की आंखों में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि शौकत भी घबरा गया था। मैंने गुस्से के वाले लहजे में शौकत से कहा, लोग मुझे तुम्हारे बारे में बताते थे कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर आते हो, लेकिन मैंने इनका यकीन नहीं किया था। मैं कहता था, नहीं, मेरा दोस्त बहुत अच्छा और नेक इंसान है, लेकिन तुम तो आस्तीन के सांप निकले। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने घटिया और गिरे हुए इंसान होगे। तुमने मेरे घर में चोरी की है। आज मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर मैंने डंडा बुलंद कर लिया। तभी शौकत बौखला कर बोला, फरहान, कोई भी ऐसा कदम मत उठाना कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो चीज़ चाहे वो करना। बकवास बंद करो, मैंने सांप की मानिंद फुनकारते हुए कहा। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। मैंने तुम दोनों को इकट्ठे देख लिया है। क्या यही काफ़ी नहीं है? मेरे दिमाग पर खून सवार हो चुका था। तंजीला भी चीख चीख कर कह रही थी, फरहान, आप पहले शौकत की बात सुन लें, खुदा के लिए। मैंने गुस्से से उसे ज़ोर से धक्का दे दिया। वो सोफ़े पर जा गिरी। मैंने गुस्से से कहा, पहले मैं इससे निमट लूँ, फिर तुम्हें भी देखता हूँ। तुम दोनों मेरे हाथों मरने से नहीं बच सकते। इतना कहकर मैं शौकत पर पिल पड़ा। शौकत ने अपने बचाव के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन मैं उसे मुसलसल डंडे से मारता रहा। मेरे होशो हवास गुम हो चुके थे। डर के मारे तंजीला भी मुझे पकड़ने के लिए नहीं आई थी। मैं इस वक्त होश में आया जब मैंने डंडे मार मार कर शौकत को मौत की नींद सुला दिया था। शौकत खून में लथपथ फर्श पर पड़ा था और मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। मेरी सांस बहुत फूल रही थी। शौकत को मारने के बावजूद मेरे अंदर लगी आग ठंडी नहीं हुई थी। मैंने तंजीला की तरफ देखा, लेकिन वो ड्राइंग रूम में मौजूद नहीं थी। शायद वो डर के मारे बाहर भाग गई थी। मैं उसे ढूंढने लगा। मैं बाहर निकलने ही लगा था, उसी वक्त बहुत से लोग आ गए और उन्होंने मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शायद तंजीला ने उन लोगों को मदद के लिए बुला लिया था। पुलिस ने मुझे अदालत में पेश कर दिया। अदालत से मुझे उम्र कैद बा मुशक्क़त की सज़ा हो गई। उस वक्त मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मुझे इंतहाई कदम उठाने से गुरेज करना चाहिए था। अगर मैंने इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ भी लिया था तो पुलिस को कॉल कर देता, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। गुस्से ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और मेरी अक्ल जब्त हो गई थी। तंजीला मुझसे जेल में हर हफ्ते मिलने आती थी, लेकिन मैं उससे मुलाकात नहीं करता था। एक रोज़ मुझे जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि तुम उससे मिल लो, वो तुम्हें कोई ज़रूरी बात बताना चाहती है। मैं उससे मुलाकात पर राज़ी हो गया। जब मैं मुलाकात वाले कमरे में पहुंचा और तंजीला को देखा तो वो बहुत उदास और गमगीन थी। मैंने तीखे लहजे में कहा, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो और क्या बताना चाहती हो? जब मैं मुलाकात वाले कमरे में पहुंचा और तंजीला को देखा तो वो बहुत उदास और गमगीन थी। मैंने तीखे लहजे में कहा, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो और क्या बताना चाहती हो? तंजीला ने कहा, फरहान, काश आप इस वक्त शौकत की बात सुन लेते तो आज आप उम्र कैद की सज़ा ना भुगत रहे होते। आपने हमारे बारे में जो राय कायम की थी वो बिल्कुल गलत थी। मेरे और शौकत के दरमियान ऐसा कोई नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं था जिससे आपकी अमानत में ख़यानत होती।
شوکت مجھے اپنی چھوٹی بہن کہتا تھا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ بھی رکھا تھا۔ اس نے کبھی مجھے گندی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہ مجھے آپ کو پہلے ہی سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ آپ کی 20 نومبر کو سالگرہ ہے۔ اس روز 15 نومبر تھی اور ہم دونوں آپ کی سالگرہ کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے۔ ہم پروگرام بنا رہے تھے کہ آپ کی سالگرہ دھوم دھام سے منائی جائے اور آپ کو سرپرائز دیا جائے تاکہ آپ خوش ہو جائیں، لیکن آپ کے سر پر خون سوار تھا۔ شوکت آپ کو کہتا رہا کہ بات سن لیں، لیکن آپ نے نہیں سنی اور اپنے غصے اور جنون میں پڑ کر اس بیچارے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں تو آپ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنے بدگمان ہو جائیں گے۔ کم سے کم آپ مجھ سے تو پوچھ لیتے تو آج شوکت زندہ ہوتا اور ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی امانت ہوں۔ وہ اور عورتیں ہوتی ہوں گی جو اپنے شوہروں کی امانتوں میں خیانت کرتی ہیں، میں ان عورتوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ میں پاک ہوں۔ میں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے مجھے شرمندگی ہو یا مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے۔ شوکت بھائی کی موت کے بعد اس کی ماں کی رو رو کر بینائی چلی گئی ہے۔ ان کا کمانے والا بیٹا چلا گیا ہے۔ آپ کے بغیر سوچے سمجھے اٹھائے گئے قدم سے 2 گھر اجڑ گئے۔ کاش آپ اس وقت شوکت بھائی کی بات سن لیتے۔ اتنا کہنے کے بعد تنزیلہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں بت بنا اسے دیکھتا رہ گیا۔ میری حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس روح فرسا انکشاف پر میں ساکت رہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل رہا تھا اور میں شرمندگی کے سمندر میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ میرے بغیر سوچے سمجھے اٹھائے گئے قدم سے واقعی 2 گھر اجڑ گئے تھے، ایک میرا اور دوسرا شوکت کا۔ میں نے خود کو لعنت ملامت کی۔ کاش میں اس وقت شوکت کی بات سن لیتا تو آج واقعی جیل میں نہ سڑ رہا ہوتا، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اب مجھے عمر کی قید کی سزا کاٹنی تھی۔ تنزیلہ نے بتایا تھا کہ وہ گھر چھوڑ کر شوکت کے گھر شفٹ ہو گئی ہے اور اس کی ماں کے ساتھ رہ رہی ہے۔ چونکہ ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس نے چھوٹی سی ملازمت کر لی ہے جس سے وہ اپنا اور شوکت کی ماں کا پیٹ پال سکے۔ میرے نیک چلن کی وجہ سے میری سزا کم ہو کر 10 سال ہو گئی اور جب میں 10 سال کے بعد جیل سے رہا ہوا تو میں پہلے والا فرحان نہیں تھا۔ میں بدل گیا تھا۔ میں سب سے پہلے شوکت کی قبر پر گیا اور قبر پر بیٹھ کر میں نے رو رو کر اس سے معافی مانگی تھی۔ شاید اس طرح میرے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا اور شوکت بھی مجھے معاف کر دے۔ میں نے شوکت کی ماں سے بھی معافی مانگ لی۔ انہوں نے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے معاف کر دیا۔ اب میں، تنزیلہ اور شوکت کی ماں ساتھ رہتے ہیں۔ مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کیا تھا۔ شاید اس طرح میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں سوچتا ہوں کہ بہن بھائی کا رشتہ بہت ہی مقدس ہے۔ ضروری نہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ صحیح ہو۔ بعض اوقات آنکھوں دیکھی چیز بھی غلط ہو جاتی ہے، جس طرح میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا۔ ایک جیتے جاگتے انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے تصدیق کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ اپنے ہی کیے پر ساری زندگی آپ کو شرمندگی ہوتی رہے۔ آپ کی طرف سے اٹھایا ہوا کوئی بھی قدم جو غصے کی حالت میں اٹھایا گیا ہو، وہ آپ کے لیے بھی اور کئی زندگیوں کے لیے خرابی پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے غصہ چاہے جتنا بھی زیادہ آ رہا ہو، اپنے ہوش و حواس نہیں کھونے چاہیے۔ غصے کو ایک طرف رکھ کے ٹھنڈی سانس لے کر معاملے کو سمجھنا چاہیے اور اسی ذہنی کیفیت کے ساتھ معاملے کو نمٹانا چاہیے۔ بے شک غلطی کسی کی بھی ہو، غصہ بری چیز ہوتی ہے۔ غصے میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ انسان کا اپنے اوپر قابو نہیں رہتا اور وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ غصے سے بہت نقصانات ہوتے ہیں، جیسا کہ میرے ساتھ ہوا۔ میری پوری زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ میری بیوی نے اتنا عرصہ اکیلے زندگی گزاری۔
صرف اور صرف میرے غصے کی وجہ سے، میری غلط فہمی کی وجہ سے، جو کہ میری ذہن میں کسی نے ڈال دی تھی اور میں نے اس پر منوان یقین کر لیا تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ بھی زندگی کے کسی بھی حصے میں غصے سے کام لینے کے بجائے ٹھنڈے دماغ سے کام لیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔